Okay, welcome my dear students of 10 plus 1 class. Now you are watching lecture number 18 of physics subject and it is on unit number 2. So today's first term we are going to start is acceleration. Acceleration. The simplest definition of acceleration can be written as, in simple words, we say that the rate of change of velocity with time is called as acceleration, right? So let us understand this term. This is a simple definition, and now let us make some physical approach to this word acceleration. Before that, let me write it mathematically. Mathematically, you can write that acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Okay, so units are very simple. यूनिट्स बनाना चाहें तो पहले वेलोसिटी की यूनिट लिख दीजिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आर मीटर पर सेकंड इन एसआई. अपॉन टाइम, यूनिट ऑफ टाइम is second. So this second, if you will shift it to the numerator, so this will become meter per second and meter per second, and this will come as meter per second square, right? And if you will talk about the dimensional formula of this quantity, then this will become change in velocity means dimensions of velocity, that is lt minus 1 upon dimensions of time, that is t. Again shift this t to the numerator, you will get lt minus 1 into t power minus 1, and this comes out to be lt minus 2. So this is the definition and dimension formula and unit of acceleration. Okay, so now let us talk about the physical meaning of acceleration. Physical meaning of acceleration is that, let us suppose that this is a bus or vehicle or any car, and any vehicle, and let initially, when time is 0, that is initial state, let its velocity is 0. That is, you can say it is at rest, right? Then driver starts to drive this vehicle, and after some time, let us say it starts to move with a velocity of 40 kilometers per hour. That means after some time it attains the velocity of 40 kilometers, let us say in 5 minutes. Let us take a simple example. In 5 minutes, after 5 minutes, it starts to move with the speed of 40 kilometers per hour. So before 5 minutes its velocity was 0, and after 5 minutes its velocity become 40. That means this vehicle takes 5 minutes to change its velocity from 0 to 40. Means velocity is increasing. That is, initially it was 0, and after some time this velocity become 40. Means there is a change in velocity. So this is that term which we were using in mathematical form, that is change in velocity. How much velocity is changed? That is, it was 40 after 5 minutes. Initially it was at 0, so change in velocity is 40. Very simple. So in this case, you can say that the velocity of this vehicle is increasing. My dear student, first of all, make one thing very clear, that when we are talking about a straight line motion, that is our this unit is, then we are just
considering the velocity and speed as the same. So you can also say here that speed is changing from 0 to 40. So this is a change in velocity. You can say that here the vehicle is speeding up. आप ये भी बोल सकते हो कि व्हीकल इज स्पीडिंग अप. स्पीडिंग अप का मतलब ये हो गया कि उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है. On the other hand, if you want to stop this vehicle, then driver will apply brakes on it, and after some time its velocity will become 0. That is, now our case is opposite to this. What is our case? Now our case is about that. Let us suppose that this is a vehicle and that it is moving at a speed of 50 meter per second. Let us suppose that. And driver want to stop here. यहाँ पर आकर ड्राइवर व्हीकल को रोकना चाहता है. दैट मीन्स यहाँ पर इस व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी. तो अगर ऐसा होता है, शुरू में वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ड्राइवर यहाँ पर इसको ब्रेक से अप्लाई करता है, सो आफ्टर सम टाइम आपका व्हीकल यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा. तो यू कैन से दैट हियर योर व्हीकल इज स्लोइंग डाउन. यहाँ पर आपके व्हीकल की जो स्पीड है वो स्लो हो रही है. यू विल से दैट इट इज स्लोइंग डाउन, राइट. सो इन these two cases you see that somewhere the velocity is increased when vehicle starts from the rest, and the velocity of vehicle is decreased when vehicle is moving and that is brought to a rest position. So in both cases the velocity is changing. In both cases your velocity is changing. So dear students, this change in velocity divided by time taken to change this velocity is known as the acceleration, right? Now we can say that this acceleration is of further, it has some types. That is, before discussing the types we can have a simple formula for this. अगर हम ये मान लें कि let at time t1 velocity is equal to v1 and at time t2 velocity is equal to v2. इनिशियल टाइम t1 है, जब से टाइम आपने नोट करना शुरू किया उस टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 थी, और आफ्टर सम टाइम t2 कुछ समय के बाद हियर ऑब्वियसली t2 विल बी ग्रेटर देन t1, velocity becomes v2. Then you can say that change in velocity is equal to final velocity minus initial velocity, that is v2 minus v1, and time interval for this change. इस चेंज के लिए जो टाइम इंटरवल था वो आपका t2 माइनस t1 हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. देन यू कैन से दैट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन टाइम टेकन, दैट इज t2 माइनस t1, राइट. और यू कैन से दैट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू del v upon del t, where del v is the change in velocity and del t is the time taken, or you can say change in time to change this velocity, or we say that change in velocity with respect to the time. So this is the mathematical formula for acceleration. So unbox it and keep it in your mind. Pause the video and learn it. चलिए अब आगे एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं कि कितने तरह का होता है. Okay, so here comes the type of accelerations. First one is the uniform acceleration and second is the non-uniform acceleration. So its definition is similar one to that of uniform velocity, that if equal amounts of velocity changes in equal interval of time, कि अगर समय के बराबर इंटरवल्स में वेलोसिटी का चेंज भी बराबर होता है तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं. और इस तरह की मोशन को आप लोग यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन भी कह सकते हो.
यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसका मीनिंग आपको डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आई suggest you to watch the first 2 or 3 lectures of this unit. So very simple, you can say again, if your time intervals are same, then change in velocity should be changed. That just means if in 10-minute velocity changes by 20 meter per second, so in next 10 minutes the velocity will also change by a 20 meter per second. That means in each interval of 10 minutes, change in velocity should be is equal to 10 meter per second. So you will say that your motion is a uniformly accelerated motion or your acceleration is a uniform. This may increase or decrease, that is a different issue, but in equal intervals velocity change should be equal. And if it is not so, then you will say it is a non-uniform accelerated body or it has a variable acceleration. For example, अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं कि पहले 10 मिनट में वेलोसिटी 20 मीटर चेंज होती है और नेक्स्ट 10 मिनट में वेलोसिटी मान लीजिए 30 मीटर चेंज हो जाती है, 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट 10 मिनट में वेलोसिटी लेट अस से दैट 40 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, इट विच इज़ नॉट अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी और इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आता है एवरेज एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास एवरेज एक्सीलरेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हम लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, वो एक एवरेज एक्सीलरेशन का ही फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन भी कहते हैं। दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल del v upon del t, del v upon del t. So this is a total change in velocity upon total time. जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो फिर हम लोग टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टोटल टाइम में टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, चेंज उसका, वहाँ से जो एक्सीलरेशन मिलेगा उसे हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन कहेंगे। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में होगी तो फिर टाइम इंटरवल कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा बड़ा जितना भी हो, सभी में आप लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, वो आपका सेम आएगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में आपका पॉइंट के ऊपर, अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो एक्सीलरेशन है वो अलग अलग आएगा, लेकिन जब आप टोटल टाइम के ऊपर उसे फाइंड आउट करें with respect to velocity, so that will come out as a uniformly accelerated motion. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन कहेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बहुत सिंपल है बच्चों, हम लोगों ने एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा डेल वी अपॉन डेल टी, और डेल वी अपॉन डेल टी मैं पहले बता चुका हूँ V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 आता है। लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ पर इसको लिमिटिंग केस में स्टडी करें, लिमिटिंग केस ऑफ टाइम, दैट इज अगर हम लोग अपने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली बट सम अराउंड जीरो, लगभग जीरो के आसपास होगा, जीरो के बिल्कुल बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इन दैट केस योर दिस एक्सप्रेशन बिकम्स डेल वी अपॉन डेल टी, आप ऐसे लिखते हैं, इसलिए लेक्चर में बता चुका हूँ पूरा, लिमिट डेल टू टेंड्स टू जीरो करेंगे आप लोग, और इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डी वाई अपॉन डी टी, डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन होता है ये। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बात करेंगे। सो दिस डी वाई अपॉन डी टी जो है, इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। वी कॉल इट एज अ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बिकॉज इसे हम लोगों ने टाइम के बहुत ही छोटे इंटरवल पर कैलकुलेट किया है। इतना छोटा इंटरवल है कि उसे आप लोग कोई एक पार्टिकुलर इंस्टेंट कह सकते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स भी बोल सकते हैं। इन किसी क्षण, किसी
पार्टिकुलर टाइम स्मॉल इंटरवल पर, किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, नॉट द इंटरवल ओनली बट एट द टाइम, एट द वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल मीन्स किसी पार्टिकुलर क्षणिक जिसे आप कहते हैं एकदम से जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग वेलोसिटी या एक्सीलरेशन, दैट वी कॉल इट एज अ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, राइट। सो अगर इसको आप थोड़ा आगे लेके चलें तो हमें मालूम होता है डेल वी अपॉन डेल टी है, सॉरी बेटा ये डी वाई लिखा है मैंने यहाँ पर, ये आपका डी वी हो जाएगा, यू विल नेम इट एज अ डी वी अपॉन डी टी। सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो डी वी अपॉन डी टी आ जाता है, राइट। बट वी आल्सो नो दैट वेलोसिटी को हम लोगों ने डी एक्स अपॉन डी टी लिखा था, that is the differentiation of x with respect to time, और change in displacement with change in time लिखा था आप लोगों ने इसे। अगर आप ये वैल्यू v का यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिलता है, a इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी लिख देते हैं, और इसे हम लोग मैथ्स की टर्म में d इंटू डी स्क्वायर कर देते हैं, और dt इंटू डी टी को अपॉन डी टी स्क्वायर लिख देंगे। दिस डी टी स्क्वायर इकट्ठा मतलब d का स्क्वायर भी है t का भी है, बट इट इज रिटन एज डी टी स्क्वायर एंड हियर इट इज रिटन एज x। सो दिस बिकम एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर x, राइट। सो वी डिफाइन इट एज हम इसे क्या कहते हैं, इसे आप लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं, यू नेम इट एज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग, सिंपल वर्ड्स में आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। दैट मीन्स अगर डिफरेंशिएशन को आप लोग 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएशन जो है x की, जो कि dx अपॉन dt होगी, उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी कहते हैं। और अगर x की 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देते हैं आप लोग, 2 टाइम डिफरेंशिएशन मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, पहले एक बार करेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसे हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिए यहाँ पे कि इफ वी नो x देन velocity is equal to dx upon dt and acceleration is equal to dv upon dt, or acceleration is equal to dtx upon d2x upon dt square. What I am writing here, this is a very important formula, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है ये। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट x पता हो तो टाइम के साथ उसकी डिफरेंशिएशन वेलोसिटी कहलाती है, और वेलोसिटी की दोबारा टाइम के साथ डिफरेंशिएशन उसका एक्सीलरेशन कहलाता है, या फिर एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट का ट्वाइस डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। टिल देन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला। So let us take some now today let us take some graphs of velocity. So here comes the VT graph of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो यू कैन से दैट v2 minus v1 is equal to 0. That means v2 and v1 are the velocities at 2 different times, then their change is 0, means velocity is not changing. In that case, VT graph means, what does it mean? VT graph means whenever you are talking about of drawing the graphs, then just make 2 axes. Along one axis take the one physical quantity, and I have discussed earlier that time is always taken along the x-axis. Independent variable is taken along the x-axis and dependent is taken along the y-axis. So along this we take as the velocity.
Okay, so let these are my time points 1 2 3 4 any maybe these are my velocity points 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं. Now let us say at any time object is moving with the velocity v. किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. तो अब ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगर टाइम उसका t1 हो जाता है आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी विल रिमेन v बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग. आफ्टर सम टाइम लेटर से टाइम बिकम t2, ये इंक्रीज होता जाएगा टाइम आपका, तो वेलोसिटी फिर भी आपकी v रहेगी. आफ्टर सम टाइम टाइम बिकम 3, देन अगेन योर वेलोसिटी विल रिमेन v. In such case, we can draw a very simple graph. So dear students, let us say that this is my first time t1, this is second time t2, this is third time t3. ये 1 hour, 2 hour, 3 hour हो सकता है, ये 1 minute, 2 minute, 3 minute हो सकता है, ये 1 second, 2 second, 3 second कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है. So we generally take it as a t1, t2 and a t3. And let us say that this is our velocity v. ये हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी v आ गई, कुछ इसका फिक्स वेलोसिटी हो गया जिस पर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है. जब हमारा टाइम इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, तो उसका वेलोसिटी v है, मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है जब हमने उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो शुरू की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट टाइम t1 वेलोसिटी v, t1 पर भी वेलोसिटी v है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट आ गया. जब टाइम t2 आया, t2 पर वेलोसिटी v आ गई, तो ये टाइम t2 हो गया. यहाँ से चले जाइए ऊपर तक, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक v कोऑर्डिनेट नहीं मिलता. ये v कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, तो ये सेकंड पॉइंट आ गया. अब t3 पर वेलोसिटी फिर से v है, ये टाइम t3 आ गया. तो y के लॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जाइए, कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर आपको फिर से v कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाता. तो इस प्रकार हम लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं. और जब आप इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपको यहाँ पर ये ग्राफ वाली लाइन मिल गई. और ये कैसी लाइन मिल गई, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स आप उसका एक्सेलरेशन 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक्सेलरेशन उसका 0 हो गया. वेलोसिटी ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. तो जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है उसमें, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है उसका 0 होगा. तो उस केस में आपका जो वीटी ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, वो आपका कैसा आएगा, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस रहेगा. सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, लेट अस सी दैट. तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सटी ग्राफ भी स्टडी किया था, ठीक है. तो उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली मोशन जो है उसमें आपका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है. लेकिन एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाएगी. तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ. अलॉन्ग वाई एक्सिस आप लोग वेलोसिटी लेते हैं, अलॉन्ग एक्सिस आप लोग टाइम लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है. अगर हम लोग ये मान लें कि जब आपका टाइम आपका 0 है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि जब हमारा टाइम 0 है उस टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 है, टाइम 0 के ऊपर, तो ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट होगा. और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी. तो आपका जो ग्राफ है दैट विल गो लाइक दिस वे, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा, ठीक है. इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये थीटा जो है इसकी यहाँ पर स्लोप कहलाएगी. पिछले लेक्चर को ध्यान से देखिए, थीटा स्लोप नहीं होती है बल्कि स्लोप उसकी टेंजेंट ऑफ थीटा आती है, ठीक है. और अगर हम इनिशियली ये मान लेते हैं कि टाइम जब 0 था, व्हेन इनिशियली यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, देन लेट अस से दैट हैज अ सम फिक्स वैल्यू. उसका जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, उसका कुछ वैल्यू है. तो इन दैट केस जैसे लेटर से ये वो पॉइंट है वी हमारा, तो उस केस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है वो इस तरह से शुरू हो जाता है, ठीक है. बट दैट विल रिमेन एज अ स्ट्रेट लाइन. तो की पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर वीटी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है हैविंग सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन, तो देखो आपका ये ग्राफ भी, दिस ग्राफ इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है. ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो अभी हमने स्टडी किया. बट दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. और आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर जो थीटा है वो 0 है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, इसका एंगल आपका 0 है.
तो जब एंगल 0 है तो उसकी जो स्लोप है वो भी क्या हो गई, आपकी 0 हो गई, मतलब लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। बट इस केस में क्या है, इस केस में आप इसके साथ देखें तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, तो मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। दैट मीन्स ग्राफ आपका कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है सम एंगल, मेकिंग सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं और विद टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग टाइम एक्सिस ली जाती है, तो वो आपका ग्राफ होगा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बहुत सिंपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ जो है, अगर आपका ग्राफ इस तरह से बनता है लाइक दिस वे, कर्व की फॉर्म में आएगा, दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। Along y-axis you can take as a velocity, and along x-axis we take as a time. So your graph is like this way. अगर 0 से शुरू होता है तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर्व्ड आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब कर्व्ड ग्राफ बन जाता है तो उसमें देखिए, अब हॉरिजॉन्टल यहाँ पर देखेंगे तो एंगल कुछ और आएगा, यहाँ देखेंगे तो एंगल कुछ और आएगा, यहाँ देखेंगे तो एंगल कुछ और आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है ग्राफ का वो चेंज होता जाएगा, और अभी हम थोड़ी देर में अभी प्रूव भी करने वाले हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है, सो वो आपकी एक्सेलेरेशन के बराबर होती है। किसकी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो एक्सेलेरेशन के इक्वल होती है। वी शैल प्रूव इट, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, आपका ग्राफ जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है, तो उसमें जो आपका ग्राफ है वो सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम रहता है, ठीक है। एंगल जो है सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम रहता है, तो दैट मीन्स आपका tan थीटा, और यू कैन से दैट आपकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम उसको कहेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जब आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, वो हमारे ग्राफ्स आते हैं, वीटी ग्राफ आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अभी भी लेक्चर आपका बहुत लंबा हो गया है। इट इज़ ऑफ 27 और 28 मिनट्स का हो गया, तो आज के लिए काफ़ी है। सिर्फ छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है मैंने, पर काफ़ी डिटेल में बताया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड watch it again and again if you don't get the concepts, and if you find any problem then you can call me at my number at 5747000009। इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो, and if you have any question then you can send this question to my this WhatsApp number, but before sending the question please make a call to me so that I may attend your question on this WhatsApp number. Okay, thank you my dear students, take care, have a nice time.